Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. I just hope you all are revising the thing, children, which are very important for you all as your term 1 examinations are going to become. So, बहुत ही नज़दीक में है आपके examination. So, be prepared for it. As I am doing the revisions for you, so today I am going to do the revision for the term first. So revision हमारे हो रहे हैं. In terms of the revision, I am doing the revision of term 1, where I am going to discuss with you the chapter 1. Chapter 1 आप सभी से डिस्कस करेंगे. So chapter 1, as you all know, is about what is psychology. Chapter 1 क्या है? It's all about what is psychology. Chapter 1 आपको what is psychology के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है. ठीक है. साइकोलॉजी को समझना है. साइकोलॉजी क्या होती है? So many definition came under this one. Firstly, you should know psychology is derived from the Latin word psyche and logos. Sorry, they are the Greek word, not the Latin. ये Greek word है. It derived from the Greek word. ये Greek word है. Psychology is derived from the Greek word psyche and logos. Psychology is derived from the Greek word psyche. From the Greek word psyche and logos. ठीक है. Psychology is derived from the Greek word psyche and logos, where psyche means mind or soul, and logos means science or study of a subject. Science or study of a subject. Psyche means mind or soul, and logos means science or study of a subject. Here, psychology is derived from the Greek word psyche and logos. Psyche means mind or soul, and logos means science or study of a subject. Please note down these important points. ये कुछ important points है जिसे आपको note down करने हैं. ठीक है? Psychology is also a science. Why it is science? There is a word logy attached to it, and logy की meaning ही होती है science. So due to that, it is known as science. Logos means science. ठीक है? This is one thing. Psychology. So from this definition we get, from this interpretation we got a definition of psychology, which means that psychology is the study of soul or mind. Psychology is a science of soul or mind. Later on, so many changes came on the definition also. Firstly, it is done. If you all have written it, so I am going to rub it. Okay, I just hope you all have done it. So इसी को ही आगे चलते हैं लेके. Now, what is the change came in the definition? Definitions में क्या क्या changes आए? So in terms of the definition, ठीक है. So
डेफिनेशंस में चेंजेस आए। सो एक डेफिनेशन तो ये हुई जो इससे ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई थी, एंड दैट डेफिनेशन इज psychology is the study of soul or mind. Later on this definition को criticize किया गया that how the psychology is the study of soul या mind. कैसे साइकोलॉजी जो है स्टडी है सोल की या माइंड की? सोल विच वी कांट टच, विच वी कांट सी, इट्स ओनली द मैटर ऑफ फीलिंग. सिमिलरली इज द माइंड. वी कैन सी द ब्रेन बट नो बडी हैज सीन द माइंड, नो बडी हैज टच इट. तो माइंड किसी ने देखा नहीं है, तो हाउ साइकोलॉजी स्टडी इट? साइकोलॉजी तो साइंस है. साइंस मीन्स जो दिख रहा है, विच इज़ विजिबल, विच इज़ प्रूवेड, हम उसी को मानते हैं. तो हाउ इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल और माइंड. ठीक है. So what I am explaining to you all that psychology is the study of soul or mind. It is the earlier definition which has proven wrong. So the new and current definition came as the how we can see the soul, how we can see the mind, and the most important, we can't measure it. So science is all about measurement, is all about proving the theory. So how it is done? So the next definition came is that psychology is the study of human behavior. Psychology is the study of human behavior. साइकोलॉजी किसकी स्टडी कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है. बिहेवियर इसलिए लिया क्योंकि बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ऑब्जर्वेबल एंड विच इज़ मेजरेबल. हम उसे देख सकते हैं, हम उसे मेजर भी कर सकते हैं. बिहेवियर कैन बी मेजर. ओके. बिहेवियर के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. दैट देयर आर टू काइंड ऑफ बिहेवियर, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर. ठीक है. So psychology is the study of soul or mind, and afterward the next definition came of the psychology is that it is the study of human behavior. Now afterward इस definition में भी काफ़ी changes और reformation आए, and the new definition came of the psychology, which is I am going to write it down and I want from you all to note it down. आप इसे note down करेंगे. So the next definition is psychology is the scientific study of, the word scientific is attached. So psychology is the scientific study of human mental process, experiences, human mental process, experiences and behavior. Human mental process, experiences and behavior. Psychology is the scientific study of human mental process, experiences and behavior. Psychology जो है वो scientific study है ह्यूमन मेंटल प्रोसेस की, एक्सपीरियंसेस की और बिहेवियर की. I hope it is very much correct to you all and understand. Here we are going to explain these concepts also, like what is mental process, what is experiences and what is behavior. So basically we are doing the revision of the chapter 1. So be alert children, and this is only the time where you can revise it. Okay, so be on your toes and watch the video on a regular basis and learn from it. So now I am going to explain you what is mental process, what is experiences and what is behavior. So here we are going to discuss about mental processes. Mental processes. Mental processes. Here we are not
not using the term children mind. Mind नहीं यूज कर रहे. There is a difference between mind and mental process. Mind और mental process के concept में difference है. Mental process means processes which are related to the mind, which required your exercise of your mental effort. So mental processes is talking about like thinking processes, remembering, problem solving, decision making. These all are the part of the mental processes. Okay, then came the experiences. Experiences are subjective in nature. It has been found that it is subjective in nature. ये जो होता है ये सब्जेक्टिव होता है नेचर में. एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है कि हम उसे ही जानते हैं या समझते हैं, या हम अपने एक्सपीरियंसेस को हम ही सिर्फ फील कर सकते हैं और कोई इसे फील नहीं कर सकता. सो दैट इज एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस हम ही समझ सकते हैं और कोई उसे समझ नहीं सकता. सो एवरीबडीज एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट. हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफर होते हैं. हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस उसी चीज़ को लेके कुछ और होंगे, आपके कुछ और होंगे. ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस को भी हम साइकोलॉजी में मेजर करते हैं, मेंटल प्रोसेस को मेजर करते हैं. एंड फाइनली मेजरमेंट बिहेवियर. बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज समथिंग दैट रेस्पॉन्ड टुवर्ड द स्टिमुलस. बिहेवियर क्या है? इट इज अ respond toward the stimulus. Stimulus can be any object, it can be any event, or it can be anything. तो stimulus के toward जब हम respond करते हैं तो that is a behavior. Now behavior is also divided into two parts. Okay, overt behavior and covert. Overt and covert. So basically जो overt behavior होता है वो over, ऊपर दिख रहा है ना, over यानी जो दिख रहा है, which is seen. एंड कोवर्ट बिहेवियर यानी कवर है ना, कवर्ड बिहेवियर कवर है जो नहीं दिख रहा है, विच इज नॉट सीन. तो ओवर्ट बिहेवियर ओवर्ट दिखता है एंड कोवर्ट बिहेवियर आर दोज बिहेवियर विच आर नॉट सीन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस एग्जाम्पल that there is a boy who is walking on the road and suddenly he saw a door, and by watching a door the boy is about to start a running. So overt behavior क्या, वो मुझे दिख रहा है कि वो दौड़ रहा है, that is an overt behavior. कोवर्ट उसकी वजह से उसके इंटरनल में जो भी चीज़ें हो रही है, लाइक उसके हार्ट पाउंड हो रहे हैं, फियर इमोशन, तो ये सारी चीज़ें कवर है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोवर्ट बिहेवियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अबाउट द साइकोलॉजी. Now there are so many things which we have to study in psychology. बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. So let's discuss more about this one. इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ओके. साइकोलॉजी को बहुत से डिसिप्लिन्स का कंसर्न माना गया है. Like it is a concern of so many discipline, and if I am saying and if I am talking about the concern, it means that it is the part of study of so many subjects. If I am talking about concern, so my issue is that and my point is that it is the concern of like कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, there is no any subject where the use of and the study of human behavior is not required. ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की रिक्वायरमेंट नहीं है. We are not talking about the experiences, we are not talking about the behavior. कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है. सभी सब्जेक्ट में हम लोग इसके बारे में बात करते ही हैं. ठीक है, तो ये तो क्लियर है आप सभी को. सो इट इज़ अ कंसर्न ऑफ सो मेनी डिसिप्लिन, और इट इज़ रिलेटेड टू सो मेनी डिसिप्लिन. इट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑल्सो, इट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग एरिया, कॉमर्स, साइंस, सभी सब्जेक्ट से ये रिलेटेड होता है. नाउ समवेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स इवोल्यूशन, विच इज़ मेन पार्ट. साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हाउ द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी have taken place. साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी.
The person who is very much responsible for the evolution of psychology is Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, who is known as the father of psychology. इन्हें हम father भी कहते हैं psychology का. He is known as the father of psychology. विल्हेम वुंड ही वो पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी इन लिप्जिग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो विल्हेम वुंड is known as the Wilhelm Wundt is known as the father of psychology. Wilhelm Wundt is known as the father of psychology. This is one thing, and he established the first psychological laboratory. He established the first psychological lab in Germany. जर्मनी में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पहला साइकोलॉजिकल लैब, और यूनिवर्सिटी का नाम था इन लिप्जिग यूनिवर्सिटी. कहाँ इस्टेब्लिश किया था? लिप्जिग यूनिवर्सिटी. So this is a very important information in terms of psychology. If we are studying the introduction about the psychology, so ये बहुत important phenomena है. And at that time the method which he has used, and that method name is, जो method में इन्होंने use किया था उस method का नाम था introspection. उस method का नाम था introspection. ठीक है, ये method का नाम था इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है, इंट्रो वर्ड है यानी पर्सन इज समथिंग. इंट्रोस्पेक्शन इज समथिंग लाइक अ सेल्फ रिपोर्ट. द पर्सन टेल अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय देयर ओन. अपनी ही प्रॉब्लम, अपनी ही सिचुएशन को वो खुद से बताते थे. तो दैट इज एन इंट्रोस्पेक्शन which is found to be not valid and not to be purely very much scientific afterward. काफ़ी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया कि ये बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है किसी के बारे में जानने का, बिकॉज द पीपल कैन टेल लाई, झूठ भी बोल सकते हैं, दे हाइड देयर रियल फीलिंग्स एंड ट्रू फीलिंग. तो इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रूवन टू बी वेरी वैलिड. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी विच कम अंडर द इवोल्यूशन टॉपिक ऑल्सो. तो स्कूल कौन कौन से थे? विल्हेम वुंड, आई थिंक नाम याद है आपको, अच्छे से याद हो गया होगा. ईयर यू विल रिमेंबर, द ईयर इज 1879. दिस इज द ईयर 1879. चलिए, नाउ इसमें इवोल्यूशन में आपको ये पढ़ना है. इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है स्कूल्स. आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, लेट्स डिस्कस डू द डिस्कशन अबाउट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. Schools of psychology, where we have to discuss about different schools of psychology. The first one is structuralist या स्ट्रक्चरलिज्म आप कह सकते हो. सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट इज फंक्शनलिज्म. द थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियरिज्म. फोर्थ इज द स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म. फोर्थ इज द साइकोएनालिसिस. ठीक है. फिफ्थ इज द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. ठीक है. so many things I have written over here. Sixth is the cognitive. Okay. Seventh is the humanistic या humanism.
structuralism, functionalism, behaviorism, psychoanalysis, gestalt, humanism, cognitive. So these are some of the schools of psychology. ये सारे क्या है, कुछ schools हैं psychology के, जिसमें कि सबसे पहला जो स्कूल which I had written over here is structuralism, which is given by the Wilhelm Wundt. विल्हेम वुंड ने ही ये स्कूल को लाया और that is why he is known as structuralist. उन्हें हम structuralist कहते हैं. एंड विल्हेम वुंड ने डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की, that psychology is the study of the structure of the mind. एंड दैट इज़ वाई उनकी क्रिटिसिज्म हुए, बहुत सारे पॉइंट्स आए कि माइंड के स्ट्रक्चर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, हाउ वी विल बी एबल टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड. सो वी गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शनलिस्ट है. फिर फंक्शनलिज्म स्कूल आया विच टॉक अबाउट द दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द माइंड. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबसे पहले विल्हेम वुंड थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल दिया एंड ही इज नोन एज द स्ट्रक्चरलिस्ट. उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, जिसे क्रिटिसाइज किया गया. और विलियम जेम्स है जो फंक्शनलिस्ट थे, उन्होंने कहा नो, साइकोलॉजी डू नॉट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, इट स्टडी द फंक्शन ऑफ द माइंड. उन्होंने फंक्शन पे फोकस किया कि वो माइंड के फंक्शन पे स्टडी करता है. देन कम द बिहेवियरिज्म, फिर वही क्रिटिसाइज हो दी माइंड किसने देखा है, हाउ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, फंक्शन ऑफ द माइंड, दैट व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइंड. उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई लोकेशन नहीं है. तो वी कम टू द कंक्लूजन द बिहेवियरिस्ट में आपके स्किनर आते हैं, पैवलव आते हैं, जॉन बी वॉटसन आते हैं. जॉन बी वॉटसन ने ये कंसेप्ट लाया. वॉटसन इज मेनली द पर्सन हु ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट कि जो बिहेवियरिज्म है, उन्होंने बिहेवियर वर्ड यूज़ किया कि साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द माइंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर. वी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर. हम क्या स्टडी कर रहे हैं? वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. तो बिहेवियरिज्म आया. बिहेवियरिज्म के बाद नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो आया वो था गेस्टाल्ट. गेस्टाल्ट जो था वो एक अलग ही कंसेप्ट को लेके आया, उनका एक अलग परसेप्शन था. उन्होंने कंसेप्ट था कि गेस्टाल्ट की मतलब होती है, द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज होल. सो उन्होंने कहा होल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट्स. उन्होंने होल की बात की कि होल जो होता है वो पार्ट से डिफर होता है. तो उन्होंने ज़्यादा कहा कि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, वेन एवर वी सी द थिंग वी सी इट एज अ होल, वी डू नॉट सी द एनीथिंग इन अ पार्ट्स. आप ही देखो, आप ही किसी को भी इमेजिन करो, आप कोई भी चीज़ को देखते हो, आप किसी पर्सन को देखते हो या कुछ भी देखते हो, आप उसे एज अ होल देखते हो, नॉट एज अ पार्ट. सिर्फ आपको उसके हेयर दिखें उसके. ठीक है. दिस इज एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन इन योर बुक लाइक ऑफ ए डॉग, कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, आपको एक डॉग दिखता है तो आप एक पूरा डॉग देखते हो. ऐसा नहीं होता आपको सिर्फ उसके लेग पे फोकस. तो ये हमारा परसेप्शन होता है कि कोई भी अगर चीज़ ब्रेकेज भी रहती है तो हम उसे कंप्लीट कर देते हैं. तो हम पार्ट्स में भी कोई चीज़ रहती है तो उसे कंप्लीट कर देते हैं. इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट देखना. जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फिगर, ये आपका इनकम्प्लीट है, ये यहाँ से कंप्लीट नहीं है, फिर भी हम इसे एज अ ट्राइंगल शेप बोलेंगे, हम इसे कहेंगे ट्राइंगल. तो दैट इज अ गेस्टाल्ट. उन्होंने होल कंसेप्ट दिया. इसके बाद आया था साइको एनालिसिस विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्रेड, एन अमेजिंग पर्सन एंड हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिप्नोसिस ऑल्सो. उनका तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट था. उन्होंने अनकॉन्शियस फीलिंग, डिजायर, basically whatever the desires, the feeling and motive which we repressed, which we do not show, that unka ye concept tha that goes into the unconscious. So he is the person who talk about conscious, unconscious, pre-conscious. ये उन्होंने बताया था, जिसे आप डिटेल में क्लास 12th में स्टडी करेंगे. So psychoanalysis school. After psychoanalysis school is humanism school. Humanistic जो थे उनके नाम थे जैसे कार्ल रॉजर, अब्राहम मैस्लो. दे फोकस ऑन ह्यूमन नेचर, दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर. उन्होंने बिहेवियर से ज़्यादा फोकस ह्यूमन नेचर पे किया, उनकी पर्सनालिटी पे किया. ठीक है.
कॉग्निटिव कोऑर्डिनेशन पे फोकस किए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. इफ यू हैव एनी डाउट, आपको लगता है कि आपको कोई डाउट हो रहा है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, डिस्कस विद मी इन द क्लासरूम चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच.